Hey guys, welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture, I'm going to explain different types of thermodynamic processes. Now, what is the meaning of thermodynamic process? So basically, it's an operation, okay, which brings about a change in a state of a system. For example, you remove ice from a refrigerator and keep it outside, it will start melting. So there is a change of state of a system at that time. So that is a thermodynamic process. Boiling, thermodynamic process. Condensation, evaporation, thermodynamic process. Sublimation, thermodynamic process. Expansion of gas, compression of gas, thermodynamic processes. So there are different types of thermodynamic processes. We are going to learn about all different types and their features. Very important lecture. So आप लोगों को note down करना चाहिए सारी points. बहुत important with respect to MCQs. Okay. So first thermodynamic process which I'm going to discuss today, the first one is isothermal process. Now iso means constant and thermal means you can say temperature. So any process which carried out at a constant temperature, for example, melting at 0 degrees Celsius, constant temperature. Boiling is carried out at 100 degrees Celsius, constant temperature. तो constant temperature पे जो process को आप carry out करोगे, that is called as isothermal process. तो अभी water boil कहाँ पर start होता है? The boiling of water starts at 100 degree, and if the water boils and you keep a thermometer inside, तो जब तक के पूरा water boil नहीं हो जाएगा, वो temperature lock रहेगा 100 degree पे. तो what does it indicate? ये आप छोटा सा practical करोगे. You put a thermometer inside water which is in a beaker, start heating it on a tripod stand. आप उसको heat करना चालू करोगे. The temperature, suppose the water is at a room temperature 25 degrees Celsius, the temperature will start rising and reach to 100 degree. Moment reach to 100 degree, it will start boiling. So the process of boiling starts at 100 degree and stops at 100 degree. So मतलब इसका मतलब क्या हो गया? The T1 and T2, the temperature will remain constant. मतलब thermometer में 100 degree will be locked till the entire water get boiled. जब तक कि पूरा पानी बॉईल नहीं हो जाता, वो टेम्परेचर 100 डिग्री पे लॉक हो जाएगा. इसका मतलब पूरा जो प्रोसेस हुआ बॉइलिंग का, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है. तो स्टार्ट हुआ 100 पे, एंड हुआ 100 पे, मतलब T1 T2 दोनों 100 हुआ, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा इसके अंदर? डेल्टा टी विच इज T2 minus T1 will be 0. So we can say isothermal process means temperature remains constant. So what does it indicate? It indicates that delta T will be equal to 0. Now we know that the internal energy of a system, the maximum internal energy of a system is the kinetic energy, which is directly proportional to temperature. तो अगर वहां पर temperature change in temperature 0 हुआ, तो change in energy भी 0 हो जाएगा. Therefore delta U भी 0 होगा. Okay, if delta U 0 हो रहा है, then delta H, that is the enthalpy, the total heat content of the system at a constant pressure, वो भी 0 हो जाएगा. क्यों ऐसा? Because enthalpy क्या होता है? Enthalpy is the total heat content of a system at a constant pressure. और अगर हम लोग change in enthalpy का formula देखेंगे, तो enthalpy is actually sum of internal energy and pressure volume type of work. मतलब delta H is equal to delta U plus P delta V. एंड ऑल्सो यू रिमेंबर कि P डेल्टा V की जगह पे मैंने लिखा था कि डेल्टा NGRT भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो डेल्टा H कैन बी रिटन एज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ वर्क का, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो. बिकॉज P डेल्टा V मैंने सिखाया था कि P डेल्टा V इज नथिंग PV2 माइनस PV1, दैट इज PV2 माइनस PV1. सो PV की जगह पे NRT डाल सकते हो, तो NRT विल बी N2R T2 माइनस N1 R T1. अगर दो टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो सपोज, सो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा N R डेल्टा T
बट टेम्परेचर हमने क्या रखा है यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब डेल्टा एन जी आर टी के अगर मैं यहाँ पर डेल्टा टी यूज करता हूँ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने वाला है। डेल्टा यू भी क्या है, जीरो है, therefore डेल्टा एच इज ऑल्सो व्हाट, जीरो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब सिस्टम का हीट कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब आप जो सिस्टम को सपोज हीट प्रोवाइड किए और सिस्टम ने वो पूरी हीट यूज कर लिया, मतलब सब वो सिस्टम ऑफ आइडल गैस। आइडल गैस आर दोस गैसेस व्हिच बिहेव्स आइडली अंडर ऑल कंडीशंस, ये आपको पता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ आइडियल गैस। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट एन आइडियल गैस, थिंक अबाउट इट कि मैंने उसको हीट सप्लाई किया, ठीक है, उसने क्या किया, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आइडियली ऐसा होता नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस कि उसने पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग। तो इफ एनर्जी ऑफ सिस्टम नॉट चेंजिंग देन द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी चेंज नहीं होगा। आप एक सिस्टम में पहले से ही सपोज 50 किलो जूल्स की एनर्जी है, आपने इसको एक्स्ट्रा 50 किलो जूल्स का वर्क हीट दिया, बट उसने वो 50 जूल्स को पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दैट हीट एडेड टू द सिस्टम इज कन्वर्ट टू वर्क। सो मतलब जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी वो फाइनल एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये आपने सिस्टम लिया है, इस सिस्टम में ऑलरेडी 50 किलो जूल्स की एनर्जी है, आपने इसके अंदर सपोज 50 किलो जूल्स एनर्जी हीट ऐड किया सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम आइडियल गैस का है। तो आइडियल गैस विल बिहेव आइडियली। सो आइडियल कंडीशन पे उसने क्या किया, गैस ने वर्क कर दिया 50 किलो जूल्स का। इसका मतलब जितना हीट थी इस सिस्टम ने पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस सिस्टम की एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, डेल्टा एच द हीट कंटेंट चेंज ही नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाई इट बिकम जीरो। बट यू नो व्हाट, सिस्टम ने हीट एक्सचेंज किया है, मतलब सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड, सिस्टम ने हीट एक्सचेंज किया, मतलब पहले हीट गेन किया फिर उसको वर्क में कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सिस्टम में हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो हीट जीरो नहीं हुआ, ओके, बट डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा एच सब जीरो हो गया आइडियली, ideal conditions. Okay, I'm talking about the ideal conditions. You have to remember this. So in an isothermal process, delta T 0, delta H 0, delta U 0, but Q not equal to 0. Okay, now according to first law of thermodynamics, it says delta U is equal to Q plus W. So if delta U in this system, delta U is what, 0. तो अगर मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया, so you will get what, Q is equal to minus W. So what does it indicate? देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, what does it indicate? It indicates that entire heat is converted into work. Heat is converted into work. मतलब entire heat, जितनी भी हीट आपने ऐड करी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई पूरी। मतलब आप सिस्टम को एक हीट दे रहे हो, वो पूरा ही वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा आइडियली ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता आइडियली। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बाइक है, और व्हीकल, कार, उसमें लिखा हुआ है कि 1 लीटर इट कैन रन अप टू 10 किलोमीटर्स। आपने 1 लीटर पेट्रोल ऐड किया टेस्ट करने के लिए, कांस्टेंट स्पीड पे हाईवे पे चलते चले गए और वो 9 किलोमीटर के आसपास चली। अब बोलेंगे 10 किलोमीटर्स नहीं पहुंच रहा, 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हीट कहाँ गया? तो 1 किलोमीटर का हीट इज बीन यूज्ड टू हीट अप द एंटायर सिस्टम। इसके लिए अगर बराबर देखोगे तो कार के जो बोनट होगा, कार का जो व्हीकल जो होगी वो अंदर से गर्म हो जाएगी, तो हीट इज लॉस। मतलब आइडियल कंडीशन में ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं आइडियल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल कंडीशन यूजिंग एन आइडियल गैस। ओके, ये रियल कंडीशन हो गई ना। तो रियल कंडीशन में सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट हम लोग यहाँ पर थियोरेटिकल आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट, एंटायर हीट गेट कन्वर्ट्स इनटू वर्क। That is why we can say in isothermal process we get maximum work, that is W max. So मैं आपको पूछूंगा कि आइडियली मैक्सिमम वर्क कौन से प्रोसेस में निकलना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ suppose if I talk about expansion of ideal gas,
सो अगर गैस एक्सपांड होगा तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो सपोज वी इमेजिन अ कंटेनर, piston in it, there's a gas enclosed. If the gas expands, ideally the piston will start moving upward in the upward direction. इसका मतलब क्या होता है, work is done by the system on the surrounding. तो expansion में work क्या होता है, negative. And Q is equal to minus W. So if I write down Q is equal to minus W, तो I can write down Q already minus W है, और अगर work negative हुआ तो minus into minus क्या हो जाएगा, plus. Therefore Q is equal to plus W. Okay, that is work of expansion हम लोग कर रहे हैं, तो work negative लिखेंगे इसके अंदर. अच्छा, अगर आप work of compression कर रहे हो, compression मतलब गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है. ओके, सो ओवर देयर कंप्रेशन के अंदर कंप्रेशन मतलब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो अगर आप कंप्रेशन करते हो मतलब पिस्टन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो व्हाट हैपन, द प्रेशर ऑन द गैस एक्सर्टेड. अगर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी. तो वी कैन से दैट ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ गैस, work is what, positive, because work is done on the system by the surrounding. work positive हुआ तो Q क्या होगा, minus W, क्योंकि इक्वेशन minus W है. You add plus W, तो minus into plus is minus. See, so this is the expression for isothermal processes. So remember that कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर Q पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर Q नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज हीट क्या हो रही है इसके अंदर, evolved हो रही है. We can say that कि your the heat is absorbed and your the heat is what, evolved. Okay, कब, जब सिस्टम वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं. Now let's move on to the next process. So I'll clear this up. The next process is adiabatic process. Adiabatic process. Now in this process, heat remains constant. So heat is what, Q. So Q remains constant. Therefore change in heat जो होगा वो जीरो हो जाएगा. ओके, तो हम लोग change in heat, हम लोग डेल्टा Q यूज नहीं करते इसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स में यूज Q, तो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो चेंज इन हीट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो. मतलब वी कैन से द चेंज इन हीट दैट इज डेल्टा Q, बोल सकते हैं हम लोग कि मोर स्पेसिफिकली it will be zero, मतलब a system will be thermally isolated. So we can say that here, you know, that the change in heat, that is delta Q, जो है वो zero हो जाएगा. But we don't use this in thermodynamics. So heat remain constant basically in this process. Okay, the change in heat will be zero. So now in this process, what about the change in temperature? So I'll give you an example. You think can understand this example. Suppose आपने एक thermoflask लिया, thermoflask which has a heat insulated, which is made up of heat insulated material. मतलब यहाँ से ना हीट बाहर जाएगा ना बाहर का हीट अंदर आएगा. वो थर्मोफ्लास्क एम्प्टी है. ओके, दैट फ्लास्क इज एम्प्टी. आपने उसके अंदर थर्मामीटर डाला, उसका सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर चेक किया, अंदर एयर होगा, सपोज टेम्परेचर 25 डिग्री. यू पुट हॉट वाटर इनसाइड, यू क्लोज इट. तो आप हॉट वाटर अंदर डाल दिया है तो मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो सकती, बिकॉज आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया वेयर द हीट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. So at that time, but आपने जब वाटर ऐड किया, अंदर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा. नाउ द टेम्परेचर इज समथिंग एल्स. द टेम्परेचर विल बी हायर देन 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब पहले 25 था, अब 25 से ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है. जैसा अभी आपने एक कंटेनर लिया है, थिंक अबाउट इट. ये कंटेनर हीट इंसुलेटेड मटेरियल से बना है, मतलब यहां से ना बाहर हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग. सो दिस इज योर सिस्टम एंड दिस इज योर सराउंडिंग. हीट, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. ओके, सपोज इसके अंदर मैंने एक रिएक्शन कैरी आउट किया है अमोनिया फॉर्मेशन का, which gives you NH3 and it's an exothermic reaction, so it will produce its own heat. अब ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ये सिस्टम से बाहर तो नहीं जाएगी, क्योंकि आपने हीट इंसुलेटेड मटेरियल यूज किया है. अच्छा, ये सिस्टम के अंदर ही रहेगी, हाँ अंदर रहेगी. लेकिन रिएक्शन होने से पहले हीट कुछ और थी. जब रिएक्शन हो गया, आफ्टर द रिएक्शन which is exothermic in nature, it will release out its own heat. तो ये हीट रिलीज होने की वजह से
पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो जाएगा अंदर सिस्टम का, तो टेम्परेचर विल चेंज. इफ टेम्परेचर विल चेंज, इंटरनल एनर्जी विल चेंज, एंथैल्पी विल चेंज. सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग दिस एडियाबेटिक प्रोसेस एट अ कांस्टेंट हीट गोइंग ऑन, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, तो डेल्टा यू भी नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ तो डेल्टा एच ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. सो ये सारी चीज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, बट क्यू विल बी जीरो. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन हैव some interpretation from first law. That first law of thermodynamics says delta U is equal to Q plus W. So now in case of adiabatic process ये तो हम लोग जीरो लेने वाले, मतलब delta U is equal to W होगा. इसका मतलब when heat is supplied to a system, the entire heat is used, just the work is done. What is the work done by the system? Just to raise its internal energy. To raise internal energy of a system. इसका मतलब क्या हो गया कि आप फूड इंटेक किए बट कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करो, सिर्फ फूड इंटेक करते जा रहे हो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी जो है फूड इंटेक की वजह से बढ़ते जाएगी. यू विल स्टोर मोर फैट इनसाइड योर बॉडी. सो सिर्फ एक ही काम हो रहा है, बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है, बॉडी कुछ फिजिकली वर्क नहीं कर रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मिनिमम एक्सचेंज हीट आप सराउंडिंग के साथ कर रहे हो, बट ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर रहे हो वर्कआउट करके हीट. So that's the reason you are not burning calorie, you're not exchanging more heat. So if it is an adiabatic process, तो in that condition, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो भी वर्क हो रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर जो हीट आई, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी. जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अमोनिया फॉर्मेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है. देयर इज, बिकॉज मैंने पिस्टन तो अटैच नहीं किया, इट्स अ क्लोज कंटेनर, तो कोई वर्क ऑफ एक्सपांशन हो ही नहीं रहा है. गेटिंग इट? सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो कोई काम तो होगा ही नहीं. इसके लिए काम कहाँ होना चाहिए? आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क. एडियाबेटिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा. यू गेट अ मैक्स वर्क इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी. मतलब अब व्हेन यू ईट फूड एंड यू डू सम फिजिकल वर्कआउट, यू स्टार्ट रनिंग, तो अब क्या होगा? बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, तो इसके लिए वो हीट लॉस करेगा थ्रू पेस्पिरेशन. ये आपको पता होगा, हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म इन अ बॉडी. क्यों? बॉडी को अपना टेम्परेचर क्या करना है? कांस्टेंट रखना है. मतलब जो आपने स्टार्ट किया था वर्कआउट और एंड रिलैक्स होने के बाद टेम्परेचर वापस से सेम लेके आना है. मतलब डेल्टा टी शुड रिमेन व्हाट? कांस्टेंट. बट एट दैट टाइम आपकी बॉडी क्या कर रही है? हीट एक्सचेंज कर रही है. मतलब वर्क कर रही है तो हीट एक्सचेंज कर रही है. सो दैट्स द रीजन इन आइसोथर्मल प्रोसेस work is done, the heat is used for doing work. But in case of adiabatic process, आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, तो जो भी आप इंटेक कर रहे हो कैलोरीज, दैट इज हीट, वो स्टोर्ड होते जा रही है जस्ट टू रेज द एनर्जी. एंड फैट इज द एनर्जी. जस्ट टू raise energy, that is fat in your system. So simple thing, understand कि you don't get a max work in adiabatic, you get a max work in isothermal process. Now let us talk about adiabatic expansion and compression of gas. Now adiabatic expansion में अब expansion होगा तो work हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, because work is done by the system on surrounding. आपने expansion सुन लिया तो work नेगेटिव है. अगर वर्क नेगेटिव है, W नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ W इज नेगेटिव, डेल्टा U भी होगा नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू W इन दिस प्रोसेस. अच्छा, डेल्टा U नेगेटिव मतलब डेल्टा T नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? कूलिंग इफेक्ट. तो गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो एडियाबैटिक एक्सपांशन करो. आपने ये पढ़ चुका है इन लिन-क्लॉड प्रोसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर. जूल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, जहां पर गैस को हम लोग रन कराते हैं थ्रू स्पाइरल ट्यूब्स, और वो ट्यूब्स थर्मली इंसुलेटेड है, तो गैस को कोई बाहर का हीट मिलने वाला नहीं है, और गैस सिर्फ भाग रहा है, एक्सपांड हो रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी यूज करते 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 गैस थक गया. तो गैस थक गया मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT. टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो गैस कूल हो जाएगा.
तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। अब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पे साथ में आ जाएंगे because of their slow movement, and they will form intermolecular force of attraction. It can be a hydrogen bonding, it can be a dipole-dipole interaction, and they will condense to convert into liquid. जो हम लोग ठंडी के सीजन में देखते हैं, the dew drops you can see in the morning, that is the condensation, where the kinetic energy of the molecule is lost completely, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा है और हवा जो है उसमें जो गैस है, वाटर वेपर है, वो मूव तो होती ही रहेगी, बट सिंस वो मूव हो रही है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर रही है, बट क्लाइमेट ठंडा है। ओके, तो वाटर अगर सिस्टम है, तो वाटर वेपर अगर सिस्टम है, वी शेप इज द वाटर विच इज अ सिस्टम, तो उसके बाहर का एरिया सराउंडिंग है। तो थिंक अबाउट इट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो हीट लूज कर दिया, वो चल रहा है, हीट लूज कर दिया, वो एक्सपांड होता जा रहा है, बट क्लाइमेट तो ठंडा है, उसको हीट और मिल रही नहीं है, so it will lose heat, and finally one water molecule comes in contact with the another water molecule, forms a hydrogen bond, third, fourth, fifth, sixth, seventh, ऐसा करके millions water molecules साथ में आ गए, कंडेंस होके बैठ गए, ड्यू ड्रॉप्स मिल गया। So adiabatic expansion can cause cooling effect. And what is adiabatic compression? तो compression में वर्क क्या होता है? वर्क होता है पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव मतलब डेल्टा यू भी क्या हुआ? पॉजिटिव। मतलब डेल्टा टी भी क्या हुआ? पॉजिटिव। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ टायर्स इन हॉट सीजन, इसके लिए हॉट सीजन में ना व्हीकल के टायर को पूरी तरीके से इन्फ्लेट नहीं करते एयर से, थोड़ी एयर छोड़ देते। क्यों? बिकॉज द हॉट एयर गोज इनसाइड द टायर मटेरियल्स आर हीट इंसुलेटेड। तो जब गाड़ी चल रही है, टायर क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं। जब वो कंप्रेस होते हैं तो गैस भी कंप्रेस होता है। जब गैस कंप्रेस होता है तो क्या होने लगता है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपांड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, एक्सपांड हुआ। जब भी वो कंप्रेस हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ते जा रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। बट टायर क्या है? टायर इज व्हाट? अ हीट इंसुलेटेड मटेरियल, मतलब वहां से हीट बाहर नहीं जा सकती ना, तो दैट इज द रीजन फाइनली इतनी ज्यादा हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इफ यू कंप्लीटली फिल द टायर, इतनी ज्यादा आ जाएगी, वो गैस क्या होने लगेगा? एक्सपांड होते होते पूरा टायर बर्स्ट कर देगा। So bursting of tire is adiabatic compression of gas. Gas compress हो रहा है, उसका temperature बढ़ रहा है system. Okay, so this is about the adiabatic process. I'll clear this up. Let's move on to the next process. The next process is very simple process, that is isochoric process. तो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक, कोरिक से हमको मालूम पड़ा नाम कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा then V2 is equal to V1, initial और final volume same होगा, so that is the reason here we can write down delta V is equal to 0. And if you remember, work is nothing but pressure volume type of work is minus P external, W is equal to minus P external delta V. So delta V अगर 0 होगा तो work भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0. Okay, that is in case of what? Isochoric process. Now from first law, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. सो अगर वर्क 0 हो गया मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट? Q. इन आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जितना भी हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट. द वर्क इज 0, चेंज इन वॉल्यूम, लाइक यू कैरी आउट अ रिएक्शन इन अ क्लोज्ड कंटेनर, सो देयर इज नो एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, यू सी. ओके, सो द डेल्टा U इज कॉल्ड एज, तो दैट इज, अब यहां से कुछ आपको पता चलना चाहिए कि डेल्टा U का दूसरा नाम क्या है. The first name of delta U is internal energy. पहला नाम क्या है उसका? इंटरनल एनर्जी. और दूसरा नाम क्या होगा? देखो, Q stands for heat, और ये हीट आपने किस पे पढ़ी है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ी है. सो देयरफॉर यू कैन आल्सो राइट डाउन इट एज डेल्टा U is equal to QV. दैट इज द अनदर नेम ऑफ डेल्टा U is, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एट constant volume. So when you supply heat at constant volume, then it will use to increase its internal energy only. Okay, because work तो होगा ही नहीं, because there is no work of expansion or work of compression, तो वो तो होगा ही नहीं, तो work is 0. So याद रखने का कि delta U is equal to Q.
at constant volume. That is why we say delta U का दूसरा नाम क्या होता है? Heat at constant volume. Memorize it. Okay. Delta U is also called as QV. Heat at constant volume. Now the next process is isobaric process. Bar stands for barometer. Bar stands for barometer, and barometer is a device we use to measure pressure. तो isobaric बोल दिया मतलब ये हो गया constant pressure पे. कांस्टेंट प्रेशर. तो डेल्टा पी 0 होगा, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डेल्टा पी लेते ही नहीं कैलकुलेशन में. वी टेक डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. तो पी जो है यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. तो वर्क भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है ना, और हम लोग ने आइसोबैरिक ही लिया है, कांस्टेंट प्रेशर ही लिया है, तो मतलब यहाँ पर जो वर्क होगा दैट वोंट बी इक्वल टू 0. सिंपल. वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके. So if I say work at constant pressure, that won't be equal to 0. Okay guys, next process lete hain. Guys, also remember one more thing. I'll give you an idea. See, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि what is enthalpy. Enthalpy is change in enthalpy is equal to change in internal energy plus P delta V, that is W. Okay, P delta V is W. अगर मैं एक्सपांशन की बात करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, बिकॉज एक्सपांशन में वर्क नेगेटिव होता है. इसको रीअरेंज किया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू. ओके, तो ये इक्वेशन मैंने निकाला फॉर द वर्क ऑफ एक्सपांशन. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लॉ इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो अगर बराबर देखोगे तो ये तो कॉमन हुआ, ये दो भी कॉमन हुए, तो कैन यू सी डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट. मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. सो यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, बिकॉज यहां जो वर्क हम लोग ने निकाला है दैट वर्क इज एट विच प्रेशर? कांस्टेंट प्रेशर. सो याद रखना डेल्टा एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, तो ये इक्वेशन से मिलता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ये इक्वेशन से आइसोकोरिक में मिलता है कि QE इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो डेल्टा U is the heat at constant volume. Delta H is the heat at constant pressure. Memorize it. Okay, heat at constant pressure, that is delta H. I'll clear this up and move on to the next process. The next process is very easy to understand. Cyclic process. इन साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है. मतलब आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया पॉइंट ए से, इट गोज टू बी, बी से वो सी पे आया, सी से इट गोज टू स्टेट डी, एंड फ्रॉम डी स्टेट इट गोज टू ए. सो ए पे आगे फिनिश हो गया. इट मींस व्हाट? इट मींस इट इज नॉट अ रिवर्सेबल. इट इज नॉट रिवर्सेबल, इट इज अ साइक्लिक. मतलब मल्टीपल स्टेप लेके वापस इनिशियल पे आएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हियर इन दिस केस इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट. मतलब अच्छा, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर. तो स्टेट फंक्शन कौन सी होती है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, देन यू हैव प्रेशर. ये सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं. पाथ फंक्शन कौन से होते हैं? वर्क एंड हीट. तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपको कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. मतलब इनका जो इनिशियल स्टेट का एनर्जी और फाइनल स्टेट का एनर्जी सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा. ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं लिखूं नेक्स्ट के टेम्परेचर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा. फिर इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा कि इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर, सो P1 एंड P2 ये दोनों सेम होगा. मतलब साइक्लिक स्टेट में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है. तो अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो डेल्टा U 0, डेल्टा D 0, डेल्टा V 0, डेल्टा P 0 सब 0 हो गया. बट क्वेश्चन ये है कि साइक्लिक स्टेट में वर्क 0 होता है क्या? तो आप बोलेंगे सर वर्क इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V 0 हुआ तो वर्क 0 होना चाहिए. मिला हाँ, बट यहाँ पर क्लोज कंटेनर नहीं है, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है A B B C C D.
फॉर एग्जाम्पल पिस्टन गैस एक्सपांड हुआ, एनक्लोज, सपोज गैस इज एनक्लोज इनटू अ कंटेनर एंड देयर इज अ पिस्टन ऑन इट। गैस एक्सपांड होगा, पिस्टन मूव हुआ, समझो 1 सेंटीमीटर, फिर एक्सपांड हुआ 2 सेंटीमीटर, फिर गैस एक्सपांशन कम हो गया तो वो 2 से वापस 1 पे आएगा, 1 से वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब पिस्टन मूव होके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। ओके, अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट रिएक्शन हो सकते हैं, मतलब एक रिएक्शन की वजह से पिस्टन ऊपर मूव हुआ, फिर उसका दूसरा रिएक्शन हुआ, उसके वजह से पिस्टन वापस डाउन हुआ। लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम, बट क्या है, वर्क तो हो रहा है ना, वर्क तो हो रहा है, बिकॉज वर्क इज अ पाथ फंक्शन, देखो यहां पर वर्क को नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, वर्क एंड हीट अ पाथ फंक्शन, सो दे आर नॉट इक्वल टू जीरो। सो यू हैव टू रिमेंबर साइक्लिक प्रोसेस में सब चेंज जीरो होता है सिवाय वर्क और हीट के, क्योंकि वो एक्सचेंज होता रहेगा और वर्क होता रहेगा। लेकिन अगर मैंने यही रिएक्शन, कोई रिएक्शन क्लोज कंटेनर में किया होता, तो क्लोज कंटेनर में गैस का वॉल्यूम, क्लोज सील्ड कंटेनर, गैस का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई पिस्टन तो है ही नहीं जिसमें कंप्रेशन एक्सपांशन होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इफ देयर इज नो कंप्रेशन एक्सपांशन इन द सिस्टम, वर्क इज नॉट डन। बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर एक्सपांशन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है, तो एक्सपांशन कंप्रेशन दोनों हो रहा है, तो वर्क हो रहा है बट चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक जगह पे क्लोज कंटेनर है, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लोज कंटेनर है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा इससे कोई एक्सपांशन और कंप्रेशन नहीं होगा, और जो वॉल्यूम गैस का पहले था वो बाद में भी वही रहेगा वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। बट अगर इसी कंटेनर में आप पिस्टन यूज कर रहे हो, पिस्टन यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर उसके बाद में फिर कोई दूसरे रिएक्शन हुए जिसके पिस्टन वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, मतलब पहले वो ये पोजीशन पे गया फिर फाइनल ये पोजीशन पे आ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया, क्योंकि समझो रिएक्शन 1 हुआ तो रिएक्शन 1 की वजह से गैस एक्सपांड हुई, रिएक्शन 2 हुआ फिर गैस एक्सपांड हुई, फिर रिएक्शन 3 हुआ जिसमें गैस कंप्रेस हो रही है, रिएक्शन 4 इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट, इनिशियल प्रोडक्ट। ओके, तो मतलब ए से बी बना, सपोज गैस एक्सपांड हुई, ओके, बी से सी बना, थोड़ा और एक्सपांड हुई, फिर सी से वो वापस ए बन जाएगा, तो गैस वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क इज डन, वर्क इज डन, बट इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, यहाँ पर वर्क हो रहा है। therefore cyclic process में you have to write down कि work is not equal to zero. ओके, और अगर मैंने यही जगह आपको बोल दिया होता कि फ्री एक्सपांशन, दैट इज वर्क इन वैक्यूम, तो यहां पर फ्री एक्सपांशन वैक्यूम में देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, तो वहां पर वर्क जीरो ले सकते हैं आप। ओके, सो वर्क इज जीरो if there is no change in volume, work is zero if there is a free expansion. You have to remember that there is a free expansion of gas. Okay, so cyclic process में सब चीज जीरो होगी, but work won't be equal to zero because it is a path function, work is happening here, मतलब एक्सपांशन कंप्रेशन दोनों हो जा सपोज, बट ओरिजिनल वापस से वही सेम स्टेट पे आ रहा है। ओके, और अगर फ्री एक्सपांशन लिखे आया दिस वैक्यूम, सो देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर तो वर्क होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू थ्रो अ बॉल ऑन अर्थ, तो वो डायरेक्ट कर सकते हो, बॉल को समझो स्टम्प है, आपको बॉल फेंकना है, यू हैव टू थ्रो द बॉल टुवर्ड्स दैट स्टम्प, सो यू कैन डायरेक्ट इट ऑन द स्टम्प एंड एयर इज द एक्सटर्नल प्रेशर। बट इफ यू डू द सेम थिंग ऑन मून, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, द बॉल रिलीज विल एक्सपांड फ्रीली एनीवेयर। तो फ्री एक्सपांशन में देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, सो देयर इज नो डायरेक्शन टू योर वर्क, and work is forced into displacement of vector quantity, it should have a direction. So अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा, सो दैट्स द रीजन फ्री एक्सपांशन में वी कैन से वर्क इज नॉट डन, या चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ तो वर्क इज नॉट डन। ओके, इस केस में साइक्लिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट इनिशियल और फाइनल स्टेप सेम हो गए हैं, तो दैट्स द रीजन इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया है, दैट इज व्हाई यू टेकिंग चेंज इन वॉल्यूम जीरो, बट वर्क तो हो रहा है। ओके, द वर्क इज डन, like okay, for example, so this was the entire story of a cyclic process. Okay, entire story of a cyclic process. Now let's move on to the next type of process. Okay, let's move on to the next type of processes.
that is reversible and रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ा सा पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो आप लोग, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का, देन आई विल राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स इन इट। नाउ सिंपल है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स, इरिवर्सिबल आर दोस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स। याद रखो, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल प्रोसेस, नॉट रियल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, waterfall. Waterfall is a kind of a irreversible process. वाटर एक सर्टेन हाइट पे से फॉल होके ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, ठीक है, अब वापस ऊपर तो नहीं जा रहा है अपने आप, नहीं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस एट दैट टाइम। अब यहाँ पर दो फोर्स, कोई भी प्रोसेस में दो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। जब पानी, वाटरफॉल, जब पानी ऊपर से गिर रहा था, द वाटर वाज फॉलिंग, that is a driving force coming with the water. It hits the surface of earth and rise a little. तो जो राइज हुआ वो क्यों राइज हुआ? क्योंकि अर्थ ने अपना एक फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज अपोजिंग फोर्स। सो वाटर जो ऊपर से आ रहा है वाटरफॉल में, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, अर्थ ने अपोजिंग फोर्स दिया, इसके लिए वाटर थोड़ा सा राइज हुआ और वहीं गिर गया, लेकिन वापस ऊपर नहीं चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस there is a large difference between a driving and the opposing force। इसके लिए वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब वो जो पानी गिर रहा है अर्थ सरफेस पे, वो अर्थ से टकरा के वापस ऊपर नहीं जाएगा, इट वोंट गो अप। इट मींस दैट द अपोजिंग फोर्स ऑफ अर्थ एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द वाटर हैज अ लार्ज डिफरेंस। प्लस इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ऐसा तो नहीं है कि पानी रुक रुक के आएगा हवा में, नो, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। द इक्विलिब्रियम इज अचीव ओनली एट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब ऊपर जब वाटर स्टोर्ड है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है, इक्विलिब्रियम है, जब वो जमीन पे आके गिर गया एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ओके, सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड है। इक्विलिब्रियम इज अचीव ओनली इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट एंड दिस इज अ फास्ट प्रोसेस। सो और इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल के लिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने गैस डाल दिया है, उसको प्रेशर, पिस्टन से प्रेशर देके दबा दिया मैंने गैस को पिस्टन से, और यहां पर दो नॉब लगा दिए, यहां पर और यहां पर। ये नॉब की वजह से अब पिस्टन ऊपर आ नहीं पा रहा है, बट गैस अंदर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बट पिस्टन आ नहीं रहा ऊपर। अब जैसी मैं नॉब रिमूव कर दूंगा, इफ आई रिमूव दिस नॉब फ्रॉम हियर, दोनों जगह से, व्हाट विल हैपन, दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, और वो सपोज यहां आगे रुक गई, दैट्स इट, रुक गया, खत्म हो गया। एंड इट गोज अ वेरी फास्ट स्पीड। जैसे आपने नॉब बढ़ाया, जुप ऊपर चला गया पिस्टन, रुक गया, खत्म। अब वो वापस नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्राइविंग जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स कम है, तो वापस वो नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर एक्सर्ट किए ना, सो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द इंटरनल प्रेशर, एंड दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, द अपोजिंग फोर्स। सो ये जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स बाहर का है, उनका बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन ये पिस्टन ऊपर जाके वापस नीचे नहीं आया। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर नेचुरल प्रोसेस। ये गैस ने नेचुरली उसको पुश किया, वो ऊपर चला गया, वो पिस्टन वापस नीचे नहीं आ रहा है खुद से, क्योंकि ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है इस केस के अंदर। ओके, सो इरिवर्सिबल में आप क्या याद रखोगे पॉइंट, की इरिवर्सिबल आर दोस प्रोसेसेस व्हिच आर फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, रियल प्रोसेस, इट टेक प्लेस ऑन इट्स अकॉर्ड बाय इटसेल्फ, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। सेकंड थिंग, equilibrium is achieved only at the initial and the final state. The difference between the driving and opposing force is very large, that is the reason you cannot reverse it. Okay, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग, दूसरा स्टडी करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, so yes sir, process can be reversed, but it is not real, it is not real. So let us try to understand this कि क्यों रियल नहीं है, कैसा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज a gas is enclosed into this container, okay? ये enclose कर दिया आपने,
और इस पिस्टन के ऊपर आपने कुछ वेट्स रखे, 1 ग्राम के वेट्स रखे। सपोज एक वेट आपने निकाल दिया, एक वेट निकाल दिया, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो इंटरनल प्रेशर है, जिसको मैं सिर्फ पी लिख देता हूँ समझने के लिए, और बाहर से जो प्रेशर आ रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। जैसे आप ये एक रिमूव करोगे तो इंटरनल प्रेशर स्लाइटली बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है, और पिस्टन ऊपर की तरफ चले जाएगा क्योंकि एक वेट रिमूव के ऊपर की तरफ चला गया। नाउ जब पिस्टन रुका हुआ था, एट दैट टाइम द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर वर बैलेंस, बट व्हेन यू रिमूव 1 ग्राम फ्रॉम इट, what happens to the internal pressure, it increases in the piston move upward, तो पिस्टन ऊपर चला गया। ओके, it moves upward। चलो ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बना लेते हैं, लाइक दिस हियर, इट मूव्स अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर गया, सी a little bit this part, okay, this is the part is moving upward। इस पे अभी भी 1 ग्राम के वेट है, एक वेट हम लोग ने कम कर दिया इसमें से, लेकिन अगर मैं वो एक ही वेट इस पे वापस ऐड कर दूंगा तो ये प्रोसेस पूरा रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल एग्जांपल, अगर मैं सारे वेट एक एक करके निकाल रहा हूं तो पिस्टन ऐसे स्लोली 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 ऊपर जा रहा है, फिर एक एक वेट वापस रख रहा हूं तो पिस्टन स्लोली 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 वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। प्रोसेस कैन बी इजीली व्हाट, रिवर्स। एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली हियर इन वन स्टेप, अब यहाँ पर बराबर देख लियो तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट अ रियल प्रोसेस। ओके, मैं खुद इसको कंट्रोल कर रहा हूँ इस प्रोसेस को। और देखा जाए इसमें तो व्हेन आई रिमूव 1 ग्राम द पिस्टन मूव्स अपवर्ड अ लिटिल, व्हेन आई ऐड 1 ग्राम द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, मतलब रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसके लिए प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लोली स्लोली आप रिमूव करोगे, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, जैसा आप रिमूव करते जाओगे ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इज अचीव इन ईच एंड एवरी स्टेप। 1 ग्राम निकालोगे वेट ऊपर जाएगा, फिर 1 ग्राम, फिर वेट ऊपर, फिर पिस्टन ऊपर गया, फिर 1 ग्राम रिमूव करो पिस्टन ऊपर जाएगा। तो स्लोली स्लोली हर एक जगह पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बैलेंस होने की कोशिश करेंगे और पिस्टन को रुका देंगे। तो दैट इज द इक्विलिब्रियम अचीव इन वेरियस स्टेप्स। So this is a reversible process. So reversible process are not real process. It's a process where there is a there is a very small difference between driving force and the opposing force. Very small difference. Therefore, process can be reverse. अब इसका मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। Suppose I want to step out of a door. घर का दरवाजा, I want to step out and my brother is standing outside. He said कि no, I won't allow you to move out. But I want to move out, but he's not allowing me. So what we do, we start pushing each other. तो मैंने उसको पुश किया, मैं 1 सेंटीमीटर बाहर चला गया, वो 1 सेंटीमीटर पीछे हो गया, फिर उसने मुझे और ज्यादा जोर से पुश किया, तो मैं 2 सेंटीमीटर अंदर चला गया, वो 2 सेंटीमीटर और अंदर आ गया। तो दिस इज हैपनिंग। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स, क्योंकि वो ब्रदर मेरी एज, ऑलमोस्ट मेरी एज का है, मेरा भाई, सो ऑलमोस्ट मेरी इज माई सेम एज ऑलमोस्ट। ओके, सो सपोज दो ट्विन ब्रदर है, सेम उनका साइज है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनके मास में, थोड़ा सा डिफरेंस। सो एक का पुशिंग एबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा, एक का कम होगा, लाइक दैट। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। सो जब वो थोड़ा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं थोड़ा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बट हर स्टेप पे हम एक दूसरे को कंट्रोल करके इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ रहे हैं कि दोनों में से कोई गिरना नहीं चाहिए। So at each and every point we are achieving equilibrium. There is very small difference between driving and opposing force, so that can be reverse, but it is a kind of unreal process. Okay. सो अब मैं आपसे पूछूंगा मैक्सिमम वर्क का हमको मिलेगा। सो मैक्सिमम वर्क ऑब्वियसली वहां मिलेगा जहां पर बहुत ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। सो मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन रिवर्सिबल, नॉट इन इरिवर्सिबल, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में we can obtain this reversible process में we can obtain a maximum work. Okay, so I'll write down those points here. You can note down these points. First, I'll write down for reversible process. पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, system is mechanical, system is in mechanical
equilibrium with surrounding. Second thing we can write down internal, the opposing force, or you can say driving force, हम लोग इसको इंटरनल प्रेशर भी बोल सकते हैं गैस के लिए। तो अगर मैंने INT नहीं लिखा तो अंडरस्टूड के इंटरनल प्रेशर होगा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स इज infinitely similar greater than opposing force, that is external pressure लिख सकते हैं हम लोग। तो infinitesimally greater मतलब बहुत छोटा अमाउंट, very small difference between the driving and opposing force, okay? So infinitesimally greater than the opposing force, the process can be, therefore process can be reverse, okay? Process can be reverse. Now equilibrium, so equilibrium at every step. Second point, it's a slow process. It involves infinite steps. जैसे मैं अपने ब्रदर को पुश कर रहा हूँ, वो मुझे अंदर पुश कर रहा है, तो कितने स्टेप्स लगेंगे बाहर या अंदर आने में मुझे मालूम नहीं। And you can get a maximum work out of it. You have to remember, very important point. And this process is a non-real, or you can say non-spontaneous process, or an ideal process. मतलब ऐसा होना चाहिए, ideal process. Maximum work is obtained in case of ideal process, but ऐसा होता नहीं है. That's the reason. Non-spontaneous. Okay, so this is all reversible process, which is a hypothetical non-real process. उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। ओके, तो सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी रिवर्सिबल, कोई भी प्रोसेस के अंदर दो चीज होती है, ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स। इफ द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, प्रोसेस रिवर्स कर सकते हो इजीली। इक्विलिब्रियम हर एक स्टेप में आएगा, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ओके, इट्स अ स्लो प्रोसेस। Equilibrium can achieve in each and every step, therefore you can obtain a maximum work out of it. Now if you write the points for irreversible process, so irreversible process इसका पूरा के पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर irreversible process में मैं बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को वाटरफॉल दिया था, तो वो एक टाइप का नेचुरल प्रोसेस है। सो इफ यू टॉक अबाउट irreversible process, हम लोग ये पार्ट लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी रिवर्स, एंड वी कैन से देयर इज अ लार्ज difference between driving and opposing force. Okay, waterfall याद रखना। Okay, equilibrium is achieved, equilibrium only in initial and final state, उसमें अचीव होगा। दूसरा, ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये फाइनाइट स्टेप्स में हो जाएगा। देन इट्स अ रियल प्रोसेस, ओके, स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है वाटरफॉल, एंड यू कैन नॉट गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ इट, सो नो मैक्सिमम वर्क। ओके, तो याद रखना, मैक्सिमम वर्क इज नॉट obtained. Okay, so this is a property of irreversible process. So अगर मैं, I'll clear this up, and if I ask you where you can get Wmax, so आप बोलेंगे Wmax दो कंडीशन में आ सकता है। एक कंडीशन होना चाहिए आइसोथर्मल और दूसरा होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस। These two condition will get a maximum work. Okay, so अभी तक हम लोगों ने जो प्रोसेस कर ली है, that was isothermal process. Then you have
एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें मैंने डेल्टा एच की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी. देन यू हैव आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process, and maximum work can be obtained in case of isothermal and reversible process. Okay guys, so this was all about processes. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग W max का इक्वेशन देखेंगे, हाउ maximum work is derived in isothermal reversible condition. Till then, take care. Bye guys.